alaikum, Aziz Ahmed here on the eve of 26th November 2025, that is 25th November. میں اس لیے کہہ رہا ہوں the eve کیونکہ کل پورے ایک سال ہو جائیں گے اس فیٹل ڈے کی جو اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف ایک میسکر کیا گیا عام لوگوں کا جو پروٹیسٹ کرنے آئے تھے اپنی جمہوری حقوق کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے اور ناجائز حکومت کے خلاف. تو ان کو رات کے وقت ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، ان کو ٹریپ کیا گیا بلو ایریا میں ڈی چوک کی طرف جاتے وقت. میری کچھ فیملی ممبرز اس دن 5واں چکر لگا رہے تھے ادھر کھانا اور پانی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے. جب میری فون پہ بات ہوئی ان سے تو میں کافی دور اس علاقے سے اس وقت تھا، تو ابھی جب پیچھے سے فائرنگ کی آواز آئی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ادھر سے نکلے، بہت زور کی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے فون کے اوپر. مگر وہ خواتین بس کھانا بانٹنے میں اتنی مصروف تھی کہ ان کو 1-1.5 منٹ کے بعد اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ادھر، اور وہ پھر نکل آئی کسی نہ کسی طریقے سے. اسی طریقے سے دوپہر کے وقت لوفالوجی جو بیکری ہے ادھر، ویری فیمس ایٹری ان بلو ایریا، اس کے آس پاس میری ایک اور فیمیل ریلیٹیو واز ٹرائنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ فوڈ، اور انہوں نے بھی اسنائپر فائرنگ بلڈنگ سے دیکھا، اور پہلی فائرنگ جس سے پہلا بندہ شہید ہوا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور بتایا کہ یہ ہو رہا ہے ادھر. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو کر رہے ہو بڑے اٹس ویری کمینڈیبل، مگر جتنے جلدی نکل سکتے ہیں تو آپ نکل لیں. میں اس کے سلسلے میں میرے پاس کچھ کلپس ہیں، وہ میں آج کے ویڈیو میں شامل کرتا ہوں. اس کے علاوہ آج 25 نومبر کی شام منگل کے دن پھر سے اڈیالہ جیل کے سامنے ایک پھر تماشا لگایا ہے، اور عمران خان کو آج میرے خیال سے 3 یا 4 ہفتے ہو گئے کہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، اور نہ فیملی، نہ لائر، نہ کوئی اور کولیگ یا کسی سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے. اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، the entire world is blind to the fact of what is going on with Imran Khan, or whether he is being maltreated or what is his views on the present situation. تو یہ بھی ایک ظلمی ہے، اور اب اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک تاریخ کے اوراق میں اس طریقے سے لکھا جائے گا کہ one of the darkest days of our country's history in all times to come. السلام علیکم سر. آئیے ملک صاحب. جی آپ کی بڑی مہربانی سر، آپ نے مجھے یاد کیا جی، ملاقات کا شرف بخشا جی، ماشاءاللہ. ایک تو ملک صاحب آپ اپنا لہجہ درست کیجیے، لہجے میں اعتماد اور اتھارٹی ہونی چاہیے. اب آپ عوام کے لیڈر، اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرو، سلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہنا کرو. اوکے سر. اور ہاں، اب یہ صدیقی ودیقی کے چکر سے نکل جاؤ، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر، صدیقی صاحب کے بغیر تو ماشاءاللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جی، وہ تو مجھے سب کچھ بتاتا. ہم آپ کو بہت کچھ بنائیں گے ملک صاحب. ہم نے آپ کی فائل دیکھی ہے، اٹس امپریسو. مگر کیا جناب؟ مگر ہم آپ پہ کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتے ہیں. جی سر. آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہاں جی سر. جی نہیں سر، وہ مستان صاحب بتا رہے تھے سر کہ ہم بادشاہ گر ہیں، دا کنگ میکرز. جی یہی کہہ رہے تھے جی مستان. بیچ میں مت بولیے، صرف سنیے. ہم اس ملک کے استحکام و ترقی کے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ کون تخت پر بیٹھے گا. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ملک کی سلامتی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. وہ نظریہ پاکستان اور نفاذ اسلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں. لائٹ بند کر دے. بناؤ.
लगा के आग शहर को, ये बादशाह ने कहा। उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुका कर सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। उरूज आहद सितम गरां का ज़वाल बन कर खड़े रहेंगे। ज़मीर आदम के रूबरू हम मलाल बन कर खड़े रहेंगे। हमारी ज़ार आसानियों का लहू में डूबी कहानियों का हिसाब जब तक नहीं मिलेगा। जवाब जब तक नहीं मिलेगा, जवाब जब तक नहीं मिलेगा, वबाल बन कर खड़े रहेंगे, सवाल बन कर खड़े रहेंगे। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदों की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदों की। लिए अभी भी रेंजर्स के पास इतना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग हो रही है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा। मानता मैं नहीं जानता। तुमको शाखों पे खिलने लगे, तुमको जाम बिंदों को मिलने लगे, तुमको सीनों के सिलने लगे। तुम कहो इस खुले झूठ को, शहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा कुसून। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने। डरते हैं उससे और क्या, अपने आप को हालांकि इन्होंने वो दे दिया है, इम्यूनिटी दे दिया है, ये लॉ के ऊपर चले गए। अब तो इनको नहीं डरना चाहिए। अब तो इमरान खान जो मर्जी कह दे, ये तो इम्यूनिटी है इनको, ना इनको डरना नहीं चाहिए। सामने मैं इस टाइम में अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं और आपको आज अडियाला जेल के बाहर का मंजर दिखाते हैं।
आज हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं। इमरान खान की बहन के बाल खींचे गए, लेकिन इन वर्कर्स ने बताया कि अब ऐसा नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये पंजाब पुलिस खड़ी है, पंजाब पुलिस के एहलकार है, आगे से रास्ता बंद किया है और यहां से आप ये दिखाएं, ये एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। उस तरह भी दिखाएं, उस तरह भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं। और ये मंजर है जी आज अडियाला जेल के बाहर का, सिर्फ यहां नहीं बल्कि इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहां पहुंच रहे हैं। आज इमरान खान का नारा अडियाला जेल के बाहर बुलंद हो चुका है। आज अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की सदारत बुलंद हो चुकी है। खान के हवाले से नाराबाजी जारी है। इससे पहले हमने देखा कि इससे पहले यहाँ इमरान खान की बहनों को तंग किया गया, इमरान खान की बहन अलीमा खान को यहाँ तंग किया गया, नूरीन खानम के बाल घसीटे गए और यहाँ उन पे पानी फेंका गया। लेकिन आज उसके बाद आप ये मंजर देख सकते हैं, ये सूरत हाल देख सकते हैं कि आज हजारों वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले पहुंच चुके हैं और पैगाम दे रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम इस तरह किया, अब इस तरह नहीं होगा। सो ये आजादी 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 अल्लाहू अकबर। अडियाला जेल के करीब आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहनें जो है वो यहाँ पे धरना दिए बैठी है। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी इस वक्त उनके हमरा मौजूद है। आज पंजाब से लीडरशिप को कॉल दी थी और आज आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर पंजाब की आवाम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सूबाई वजीर जो है मीना खान अफरीदी वो मौजूद है, उनके साथ शफकत अयाज है वो मौजूद है। और आप ये मनाजर देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर मज़ाहमत की इलामत समझे जाने वाली इमरान खान साहब की बहन जो है वो आप तीनों बहनें जो हैं वो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। सड़क पे उन्होंने धरना दिया हुआ है। अभी तक उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, लेकिन आगे देखना ये होगा कि उनको मुलाकात की इजाजत मिलती है या नहीं। आप ये मनाजर देख सकते हैं, इस टाइम कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। शदीद नाराबाजी की जा रही है अडियाला जेल के बाहर से। इमरान खान साहब की बहनें जो हैं इस इमारत के हवाले से कल मतीउल्लाह जान साहब डॉन अखबार ने एक बड़ा खौफनाक किस्म का कार्टून जो है वो नाजरीन के लिए पेश किया है और उन्होंने मेरे ख्याल में कार्टून में सब कुछ बता दिया। एक चूहा जो है वो खा रहा है इस इमारत को और काट के रख दिया है तकरीबन एक तरफ एक साइड पे। उस चूहे के ऊपर तो 27वीं आईनी तरमीम की तख्ती लगाई गई, मगर चूहा चूहा होता है। जिस घर में खाता है उसी घर में छेद भी करता है, उन्हीं बर्तनों में छेद भी करता है। और 27वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट की मंजूर शुदा है, उसने जो हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किया है वो यकीनन उस चूहे वाले कार्टून में वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। कुतर के खा रहा है, वो रुका नहीं, खा रहा है। और वो उसने काफी साइड जो है वो कुतर के खा चुका है सुप्रीम कोर्ट की। They changed the law for a single man because even behind bars he kept winning. It's 2025, Pakistan. Lawmakers huddle in corners. They speak of one problem: a man they jailed, banned, silenced again and again, yet still couldn't be erased. For a time, they believed the system could suffocate him. Cases stacked like bricks. His silence thundered louder than their speeches. So the ruling alliance forged something new: the 27th Amendment. The impact was instant. Election rules rewritten. Courts stripped of power to the hands already tightening their grip. He answered in the only way he could. Letters from jail became front-page news. Leaked audios lit the internet on fire. Supporters flooded the streets uninvited. The people knew the truth. They feared the return of the one man who actually cared for his people, and his name was Imran Khan.
तुम कर लो कोशिशें मगर मैं रुकने वाला नहीं। ये सर जो उठ रहा है अब किसी से झुकने वाला नहीं। और बता दो उनको कि दुआ नहीं हूं 4 दिन का, कि ये वो आग है जो अब किसी से बुझने वाली नहीं।